So yeast cells contain an enzyme catalase which catalyzes the hydrolysis of hydrogen peroxide into oxygen and water with the transfer of heat to the surrounding. तो ये surrounding को heat transfer करता है. This is an exothermic reaction. Sodium chloride solution can affect this reaction in the yeast cells. The effect of sodium chloride solution on yeast cells can be measured by the increase in the temperature. So this is what you have to measure. यानी आपने जो sodium chloride का effect है on the enzyme activity को measure करना है by measuring the change in temperature. You are required to prepare different concentrations. ये these are expectations that you have to do in this year practical. Prepare the different concentration of sodium chloride solution S. Investigate the effect of different concentrations of sodium chloride solution on the yeast cells by finding the highest increase in temperature. तो आपने temperature rise जो है वो measure करना है. इसमें you are provided with, ये आपको solution दिया हुआ है S, W, Y and H. S is 10% sodium chloride solution, W is distilled water, Y is yeast cell suspension, and H is hydrogen peroxide. It is recommended that you wear safety goggles or glasses when carrying out a practical procedure. The hazards of the use of all the apparatus and the solution need to be considered. Then the level of risk need to be assessed as low or medium or high. State the hazard with the greatest level of risk when using the apparatus and solutions, and state the level of risk of the procedure low, medium or high. तो बेटा इसमें ये जो केमिकल दिए हैं या जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं इसमें देखें कि आपको क्या रिस्क लगता है. आपको नहीं लगता कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये इरिटेंट है और ये स्किन इरिटेशन कॉज कर सकता है. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 is an irritant or corrosive. तो लेवल ऑफ रिस्क क्या होगा? ये मीडियम लेवल ऑफ रिस्क है, यानी इसे हाई लेवल ऑफ रिस्क की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते. हाई लेवल ऑफ रिस्क होगा व्हेन इट इज वेरी कंसंट्रेटेड और इट कैन बर्न द स्किन और कैन बी फेटल. You're required to change the concentration of sodium chloride solution. Table 1.1 shows how to make up 2 of the sodium chloride solution you will use. तो आपने sodium chloride solution बनाना है. Volume of, if you look at this, volume of 10% sodium chloride solution 0 लिया आपने, volume of distilled water डाला 10, तो आपके पास जो percentage concentration of S बनेगी that will be 0 और वो 0 concentration आपके पास बनेगी. फिर अगर आप 10 cm cube of 10% sodium chloride लें और 0 इसमें distilled water डालें तो जो percentage concentration होगी that will be 10. इसका मतलब ये है कि the total volume to be prepared is total volume to be prepared is 10 cm cube और C1 is 10% और C2 हमने जो है वो डिसाइड करना है खुद से और बाकी जो कंसंट्रेशन है वो खुद से हम प्रिपेयर करेंगे. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन यू विल मिक्स 10 cm cube of each concentration of sodium chloride solution with 10 cm cube of yeast suspension to make a mixture SY. तो इसका मतलब ये है कि आपने 10 cm cube जो है वो आपने लेने हैं इसके जो कंसंट्रेशन आपने प्रिपेयर की और 10 cm cube आप लेंगे Y के और उनको मिक्स करके आप SY सॉल्यूशन जो है वो बना देंगे. तो वॉल्यूम ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 0 लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लिया 10, इनको मिक्सअप किया और जो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एस आएगी दैट विल बी 0 जैसे पहले टेबल में आपने किया. और इसे जब आप परसेंटेज 10 cm क्यूब ऑफ वाई में डाल देंगे तो एस वाई की कंसंट्रेशन भी क्या बनेगी, वो 0, क्योंकि इसके अंदर तो सॉल्ट है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन 0 ही रहेगी. नाउ यू टेक 10 cm क्यूब ऑफ 10% and you add 0 cm cube of distilled water, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ S जो है that will be 10%. और जब 10% का 10 cm क्यूब आप इसका लेंगे, 10 cm क्यूब आप इसका और प्लस इसमें डालेंगे 10 cm क्यूब ऑफ Y, तो ये बन जाएगा 20 cm क्यूब ऑफ SY. लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन जो है ये 10 थी
तो ये इसका हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने डबल कर दिया ना उसको, सोल्यूशन को, उसका वॉल्यूम जो है डबल कर दिया आपने बाय डाल के, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी। डिसाइड विच कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन टू प्रिपेयर, आपने कौन सी सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेशन प्रिपेयर करनी है, यूजिंग सिंपल डाइल्यूशन एंड यूजिंग 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। आपने 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है और आपने कंसंट्रेशन प्रिपेयर करनी है। जब आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट कंसंट्रेशंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड, तो व्हाट कंसंट्रेशंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड, तो आप मिनिमम कितनी कंसंट्रेशन प्रिपेयर करते हैं बेटा? 3. मिनिमम 5 कंसंट्रेशंस। और जो रेंज होगी वो क्या होगी, यानी उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू जो है इंक्लूडेड होनी चाहिए। मैक्सिमम कौन सी है, 10% है, और मिनिमम क्या है 0, तो 0 10 दोनों इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो फिर मिनिमम 5 वैल्यू जब आप बनाएंगे तो ये आ जाएगी आपके पास, ये है ना एस की कंसंट्रेशन आपने जो प्रिपेयर करनी है, तो ये 0% और ये 10% आ जाएगी। तो व्हाट अदर परसेंटेजेस यू कैन मेक ऑफ एस, 0 भी हो उसमें और 10% भी हो, तो व्हाट अदर कंसंट्रेशन यू कैन प्रिपेयर, other concentration that you can prepare maybe 2%, maybe 4%, maybe 6%, or maybe 8%, or maybe 10%. तो 0 से लेकर 10 तक आपने कंसंट्रेशन, ये है ना परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यू गॉट इट। तो 0 से लेकर 10 तक आपने कंसंट्रेशन प्रिपेयर करनी है, सो दैट शुड बी 2, 4, 6 एंड 8। इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप कर सकते कि 1, 2, 5, 6, 9 कुछ भी आप लिख लें, ये इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट वॉल्यूम हैज टू बी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ईच हैज टू बी टेकन। इसके लिए आपको पता है कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। C1 बेटा क्या है, C1 इज दिस इज 10%, V1 हमने कैलकुलेट करना है, ये है V1। C2 क्या है, दिस इज व्हाट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, ये है C2, ये हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो ये है 2। V2 क्या है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम दैट वी हैव टू प्रिपेयर्ड, और टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ डिसाइड किया था कि कितना टोटल वॉल्यूम हमने प्रिपेयर करना है, दैट इज 10 cm3। तो टोटल वॉल्यूम हमने 10 cm3 प्रिपेयर करना है, सो दिस इज 10। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 विल बी 2 into 10 divided by 10, तो 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो V1 शुड बी 2, तो ये जो है वो 2 आएगा, और डिस्टिल्ड वाटर कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसके लिए कैलकुलेट कर लें, नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसके लिए कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, अब ये आपका C2 होगा, ठीक है। तो यू पुट दिस वैल्यू हियर इंस्टेड ऑफ दिस 2, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें 4, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, सो ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ये फिर 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस SY टेबल में, कि दैट बिकम्स हाफ ऑफ इट, क्योंकि आपने 10 cm3 S के और 10 cm3 Y के मिक्स करने हैं, तो उससे क्या है, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा आपके पास डिस्टिल्ड वाटर विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V2 कितना है 10, और V1 हमने यहाँ से ले लिया -4, तो ये आ जाएगा 6। ये आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, सो 2 का हाफ हो गया 1, और 4 का हाफ हो गया 2, 6 का हाफ हो गया 3, 8 का हाफ हो गया 4, और 10 का हाफ हो गया 5। तो ये आपके पास कंसंट्रेशंस आ जाएंगी S और Y की। यू गॉट इट पॉइंट। नाउ रीड स्टेप्स 1 to step 13 बिफोर प्रोसीडिंग। पहले आप इसको पढ़ेंगे सारे स्टेप्स को, और फिर आप उसके बाद जो है वो आगे इसको दोबारा से, इसके लिए अब आपको ऑपरेटर चाहिए होता है टू परफॉर्म दिस पार्ट।
Prepare concentrations of S as stated in B1 in beakers provided. आपको beakers दिए होंगे. You have been provided maybe small beakers. ये आपको बीकर प्रोवाइडेड है. इनको लेबल कर दें आप. इनको लेबल कर दें आप 0%, 2%, 4%, 6%, 8% और 10% of S. ठीक है. और ये है S 10% गिवन. ये तो आपको दिया हुआ है ना. अब आपने इस टेबल के अकॉर्डिंगली टू प्रिपेयर दिस 0%, ये प्रिपेयर करने के लिए इसके कितने सीएम क्यूब इसमें डालेंगे और इसमें डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे. कि S1 यानी S जो वॉल्यूम है वो है V1. दिस इज V1. ये आपका V1 होगा. V1 कितना आप डालेंगे 0 और डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे 10 cm क्यूब. यस. तो ये आपके पास 0% हो गया. ये आपने कर लिया. फिर आप इसमें से डालेंगे इसमें कितना 2 cm क्यूब. यस 2 cm क्यूब. और डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे इसमें 8 cm क्यूब. यस डिस्टिल वाटर आप डालेंगे 8 cm क्यूब. और इसी तरह से you will keep on preparing the other concentrations as well. Okay. और इनमें उसी तरह से उसी proportion से जो आपने अभी कैलकुलेट किए टेबल के अंदर वहां से डिस्टिल वाटर and the S you will mix them up together. तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट. इसको आप टेक कर दें. Once you have done this, तो you just take it. फिर दूसरा पॉइंट start the yeast suspension Y. ये Y जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है. Do you see this is Y given to you? इसमें yeast suspension है तो इसको आप स्टर करें. सेकंड पॉइंट ये है कि यू जस्ट स्टर इट. आप इसको स्टर करें ग्लास रॉड के साथ. फिर use a clean syringe to collect 10 cm cube of Y from below the froth, and then put this 10 cm cube of Y into each of the beaker used in step 1 to make a mixture SY in each beaker, and then stir well and leave for at least 5 minutes. तो अब आपने क्या करना है. अब इन्हीं बीकर के अंदर यानी ये जो बीकर है आपके पास इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6. अब इनमें आपने क्या करना है. अब इनमें आपने 10% और 10 cm क्यूब ऑफ Y डालना है. ठीक है. 10 cm क्यूब ऑफ Y सब में. तो जब आप 10 cm क्यूब ऑफ Y डालेंगे तो पहले इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी. पहले इसकी थी 0, इसकी थी 2, इसकी थी 4, इसकी थी 6, इसकी थी 8 और इसकी थी 10. तो अब क्या हो जाएगा. अब SY हो गया ना. नाउ इट इज एन SY. हाँ. अब आपने SY मिक्स कर दिया. इसको स्टर करेंगे तो अब ये 0% ही होगा. ये जो है ये 1% हो जाएगा SY. ये हो जाएगा 2% SY. ये हो जाएगा 3% SY और ये हो जाएगा 4% SY और ये हो जाएगा 5% SY. You got it? और उसको स्टर करके 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें इस apparatus को. You got it? Now while you are waiting, continue with question number 1. Label test tubes with the concentrations of sodium chloride solution in the mixture SY you prepared in step 4. तो जो step 4 में आपने प्रिपेयर किया था वो आप टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर लें. अब आप ले लें 6 टेस्ट ट्यूब्स. ये आपने ले ली 1 2 3 4 5 और 6 और इनको आप लेबल कर दें SY 0%, SY
1%, SY 2%, SY 3%, SY 4% and SY 5%. तो ये आपका स्टेप हो गया. Label test tubes with concentration of sodium chloride solution in the mixture SY. अच्छा नहीं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप SY की कंसंट्रेशन लिखें. उसने लिखा है कि लेबल विद द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन आपने लिखनी है, तो वो आप लिखें. यहाँ पे SY की कंसंट्रेशन नहीं लिखनी. ठीक है, तो डजंट मैटर, दोनों वैल्यूज आपके पास हैं. आपको जो वैल्यू वो कहेगा वो आप लिख लें. सो ये 0 है और ये है 2%, ये है 4%, ये है 6%, ये है 8% और ये है 10% ऑफ S of S of S of S of S and of S. तो ये S की कंसंट्रेशन हो गई आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर. ठीक है, फिर क्या करें? Now put 5 cm cube of H into each of the test tube and record the temperature of H in each test tube. अब इनमें आपने इसको लेबल किया है, आपने इसमें कोई मटेरियल नहीं डाला अभी. अब आप इसके अंदर 5 cm क्यूब ऑफ H डाल रहे हैं. इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इन सब में. You got that? ये एम्प्टी थी टेस्ट ट्यूब्स और इसके अंदर आपने 5 cm क्यूब ऑफ H डाल दिया. सो ये स्टेप भी आपका हो गया. रिकॉर्ड द टेम्परेचर. अब आप इसके अंदर थर्मामीटर रखें और इसका टेम्परेचर जब रिकॉर्ड कर लें. आफ्टर लीविंग SY फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. स्टेप 6, put 1 cm cube of the mixture SY with 0% sodium chloride solution into the appropriate test tube and stir well. अब आप इसमें से 1 cm क्यूब लेंगे और आप इसमें इसको you will put it into the first. और इसी तरह से आप फिर बाद में इसमें से 1 cm क्यूब लेंगे और इसमें डाल देंगे. फिर इसमें से लेंगे 1 cm क्यूब और इसमें डाल देंगे. ये बाद में बारी बारी आप करेंगे 1 by 1. तो ये हो गया आपका. पहले तो आपने सिर्फ लेबल किया था. पहले स्टेप 1 में आपने लेबल किया, फिर स्टेप 2 में आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, फिर स्टेप 3 में आपने ये इसको जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर है, ये आपने इसके अंदर डाला. ठीक है, अच्छा जी. So after leaving SY for at least 5 minutes, step 6, put 1 cm cube of the mixture with 0% chloride solution into the appropriate test tube and stir well. Time for 2 minutes and record the highest temperature of the contents of the test tube during the 2 minutes. So 2 मिनट तक के लिए आप इसमें थर्मामीटर रखें और उसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर आता है उसको आप रिकॉर्ड कर लें. ठीक है, रिपीट स्टेप्स 12 विद द रिमेनिंग. और ये स्टेप जो है वो सारी 6 की 6 टेस्ट ट्यूब के साथ आपने परफॉर्म करना है. So this is experiment. अब आप देखें, prepare the space below to record your raw results and your processed results. तो एक तरफ आपके पास आ जाएगी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ S बैकस्लैश डाल के परसेंटेज, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, जब आपने H का टेम्परेचर लिया था अलोन, और फिर आपके पास आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर और ये आ जाएगा टेम्परेचर चेंज. और बैकस्लैश डाल के आप इसके साथ डिग्री सेल्सियस और बैकस्लैश डाल के डिग्री सेल्सियस और बैकस्लैश डाल के डिग्री सेल्सियस जरूर. तो ये आपका टेबल बन जाएगा. अब कंसंट्रेशन है आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 और 10. ओके, और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कर लें. जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उसको कैलकुलेट करके, तो यू
write the change here. This is the only thing. अच्छा, अब इसमें 6 marks हैं. 6 marks किस बात के हैं? 1 mark is for this, making the heading. 1 mark is for writing the unit. 1 mark is for writing this in order. 1 mark is for making these columns. And 1 mark is for recording these values. And 1 mark is for writing the process result. ये 6 marks हैं आपके. Okay, so let me show you the marking for table. ये 6 marks है ना table पे. तो 1 mark इस बात का है, marking point 1, table drawn plus headings for percentage change plus SY. ठीक है? आपने टेबल बनाया जिसमें आपने हेडिंग फॉर परसेंटेज कंसिडरेशन लिखी है, एस की या प्लस SY की, दोनों में से कोई भी कंसिडरेशन जो है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का इफेक्ट आप देख रहे हैं तो आप S या SY दोनों लिख सकते हैं. मार्किंग पॉइंट हेडिंग फॉर टेम्परेचर प्लस डिग्री सेल्सियस, आपने हेडिंग की टेम्परेचर की हेडिंग दी और साथ आपने डिग्री सेल्सियस लिखा, 1 मार्क इसका है. और मार्किंग पॉइंट रिकॉर्ड रिजल्ट फॉर इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, आपने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, 1 मार्क इसका है. और मार्किंग पॉइंट 4 रिकॉर्ड टेम्परेचर टू द करेक्ट एक्यूरेसी, यानी करेक्ट एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो थर्मामीटर पे जो मेजरमेंट आपकी आती है, जैसे इफ इट मेजर्स इन द स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो क्या आपने उस स्मॉलेस्ट डिवीजन तक जो है उसको मेजर किया, तो दैट इज करेक्ट एक्यूरेसी. और मार्किंग पॉइंट रिजल्ट फॉर 0% फर्स्ट, जैसे ऑर्डर में मैंने आपको कहा था कि 1 मार्क उसका है कि आपने 0.0% को सबसे पहले लिखा और बाकियों को बाद में लिखा है. और मार्किंग पॉइंट 6 प्रोसेस रिजल्ट्स रिकॉर्डेड इन द टेबल, तो टेबल में क्या प्रोसेस रिजल्ट्स जो वो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये है बेटा 6 मार्क्स. अब इसमें से ये 1 मार्क है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का, जो आपने परफॉर्म करना था एक्सपेरिमेंट एंड यू हैड टू रिकॉर्ड दीज रिजल्ट्स. बाकी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या नहीं किया उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं विदाउट doing that experiment. You got the point? Now let's see. Explain why it is necessary to collect a result for the 0% sodium chloride solution and yeast mixture SY. ये क्यों जरूरी है कि आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें सोडियम हो ही ना? For accurate results. No. As a control experiment. Yes, as a control. State the value of the smallest division on the scale of your thermometer. तो ये जो थर्मामीटर आपको दिया होगा उस पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो क्या है, वो आप उसमें से देख लें. जनरली इट इज 1 डिग्री सेल्सियस, ये 1 डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक है, तो स्टेट द एक्चुअल एरर इन मेजरिंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द थर्मामीटर. तो इंक्रीज आपने मेजर करनी है ना बेटा, कि 6 डिग्री सेल्सियस की जो इंक्रीज है, तो इंक्रीज कैसे आएगी? पहले आप इनिशियल मेजर करेंगे, फिर आप फाइनल मेजर करेंगे, 2 दफा मेजर करेंगे, तो जो लीस्ट एरर है वो 2 दफा ऐड होगी. और लीस्ट एरर, यू नो हाउ द लीस्ट एरर इज कैलकुलेटेड. लीस्ट एरर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? लीस्ट एरर बेटा आप कैलकुलेट करते हैं कि हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन. स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर 1 डिग्री सेल्सियस की हो, दिस इज स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो लीस्ट एरर क्या होगी? लीस्ट एरर विल बी 1/2, ये आ जाएगी 0.5 डिग्री सेल्सियस. इसे प्लस और माइनस लिखेंगे. और चूंकि 2 दफा आपने किया है, यानी एक दफा आपने इनिशियल वॉल्यूम लिया, टेम्परेचर लिया, एक दफा फाइनल टेम्परेचर लिया, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. The actual error of using the thermometer is the same for
each measurement, the trend in the results is not affected and it is not significant source of error. क्योंकि ये थर्मामीटर इनिशियल और फाइनल हर टेस्ट ट्यूब के साथ एक ही रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, so it will not influence the results. Due to procedure, the highest temperature recorded may be inaccurate, not close to the true temperature. Suggest how step 9 and 11 introduced an error which caused the highest temperature recorded to be inaccurate. तो ये कैसे inaccuracy आ गई आपके पास step number 9 और step number 11 के अंदर? You go back to step number 9 and step number 11. ये है step number 9 और ये है step number 11. क्या किया आपने? You have recorded the temperature of H in each test tube and time for 2 minutes and record the highest temperature of the contents of the test tube during 2 minutes. तो क्या यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? एरर क्या हो सकती है? दो एरर हो सकती हैं. एक तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग स्टॉप वॉच में डिले हो सकता है कि आपने 2 मिनट किसी को कम ले लिया, किसी को ज्यादा ले लिया. दूसरा ये भी हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब में से जो हीट है दैट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, क्योंकि ग्लास की है ना, तो हीट लॉस्ट टू सराउंडिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिले इन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग स्टॉप वॉच. तो ये आ जाएगा. दिस प्रोसीजर इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ. ये हमारा एक्सपेरिमेंट था. ठीक है. टू मॉडिफाई दिस, आपने इस एक्सपेरिमेंट को आप मॉडिफाई करना है. टू मॉडिफाई दिस प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अनदर वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वुड नीड टू बी स्टैंडर्डाइज. तो इसको आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है कि यू कीप कांस्टेंट थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्राइब हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी स्टैंडर्डाइज. तो आप इससे किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करेंगे कि ऐड सेम कंसंट्रेशन इन ऑल टेस्ट ट्यूब्स. और बेहतर है कि आप लिख दें कोई एक स्टेट वैल्यू, जैसे आप ये कहते हैं कि ऐड 0% sodium chloride in each test tube. Not necessarily 0%, आप कोई भी कंसंट्रेशन जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं. बट 6 की 6 टेस्ट ट्यूब में अब पहले आपने सोडियम कंसंट्रेशन जो है, सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इन टेस्ट ट्यूब के अंदर वेरी की थी ना. सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन जो है वो 0% थी, 2% थी. ये देखो ना. अब आपने क्या करना है, कोई भी एक कंसंट्रेशन ले लें दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट. तो ये होगा स्टैंडर्डाइजिंग द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. और डिस्क्राइब हाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी इन्वेस्टिगेटेड. तो अब अगर आपने पहले आपने सोडियम क्लोराइड का इफेक्ट आपने देखा है, अब अगर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इफेक्ट देखना हो तो क्या करेंगे कि प्रिपेयर a range of concentration of hydrogen peroxide. क्या कंसंट्रेशन दी हुई थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, वो आप देख लें. वो इसमें दी होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन इस टेबल में. ये है, ये दी हुई है. इसमें उसकी कंसंट्रेशन नहीं दी हुई. ठीक है. पर अगर नहीं भी कंसंट्रेशन दी हुई तो डजंट मैटर. तो हम ये लिखेंगे prepare range of concentration of hydrogen peroxide that is 5 concentrations prepare करेंगे. मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 5 concentrations की है. 5 concentrations are prepared by method, आप कोई भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, by simple dilution और by serial dilution. ठीक है. So this is how you can. अच्छा, अगर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे ना. अगर आपने यीस्ट का इफेक्ट देखना हो फिर क्या करेंगे? फिर यीस्ट की कंसंट्रेशन वेरी करेंगे. जिस चीज का इफेक्ट आपने इन्वेस्टिगेट करना हो उसकी कंसंट्रेशन आप वेरी करेंगे. Now in a similar investigation, a student investigated how changing the concentration of copper sulfate solution affected the hydrolysis of hydrogen peroxide.
The release of oxygen was measured by counting the number of bubbles when the oxygen was released through a delivery tube into a test tube of water. तो ये बेटा ये वाले जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, independent variable, and that will fall on x-axis, and that is dependent variable, and that should be on y-axis. और जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसमें you should consider these points. S for suitable scale, labeled axis, area or axis correctly oriented, and plotting. So these should be the 4 points for making a graph. जैसे ये पूरा का पूरा जो है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट परसेंटेज, और यहाँ के आ जाएगा नंबर ऑफ बबल्स रिलीज्ड पर मिनट इन रेट ऑफ कैटलेज एक्टिविटी, पूरा लिखेंगे रेट ऑफ कैटलेज एक्टिविटी और बैकस्लैश डाल के तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बबल्स पर मिनट, ये पूरा लिखेंगे, यानी यूनिट और वैल्यू दोनों चीजें होंगी। और फिर स्केल जब आपका शुरू हो रहा है यहाँ से 0 से 0.3 तक, तो 0 से 0.3 तक आप देख लें कि कितने आपके पास ये वैल्यूज हैं। तो अगर आप इसको 0.1 रखें, इसको 0.2 और इसको 0.3, तो दिस इज वर्केबल, यानी ये आपका 0 आ गया, ये आपका 0.1 आ गया, ये आपका 0.2 आ गया और ये 0.3 आ गया। तो बाकी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करें। ये जब आपका फॉल कर रहा है 0 से लेकर 39 तक, तो ये आपका 0 आ गया और ये आ गया 10 आ गया, ये आ गया 20, ये आ गया 30 और ये आ गया 40। तो ये सूटेबल स्केल आ गया आपका। सूटेबल स्केल भी हो गया, एक्सेस लेबल भी हो गए, एक्सेस करेक्टली ओरिएंटेड भी हो गए, और अब आप प्लॉटिंग कर लें वैल्यूज को इनके सामने। So this is how you will make this graph. और explain the relationship between the concentration of copper sulfate solution and the activity of the catalase. तो explain करना, आपने रीजन देनी है। रीजन क्या है कि जैसे जैसे कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो बबल्स प्रोड्यूस्ड है वो कम होते जा रहे हैं। तो व्हाट मे बी द रीजन फॉर दिस? इसकी रीजन ये होगी कि कॉपर सल्फेट inhibits catalase, so less ES complexes formed and lower you got that? So that's all about this question number 1. Hope you have understood.